Today we will start indirect taxation class module 4 concept of indirect taxes. Let's start. Uh, as for our study notes, we can see under concept of indirect taxes, four categories are there. That is concepts and features of indirect taxes, difference between direct tax and indirect tax, background of erstwhile indirect taxes, constitution validity of GST. We will cover all these four uh, contents um, point wise in the next slides. Concept and features of indirect taxes. Well, first of all, we'll know what is indirect taxes. Indirect taxes, as the name suggests, this means indirect taxes means taxes which are paid indirectly. Direct taxes we all know what is direct taxes, but indirect taxes, as we don't know. So we have to understand that this tax is nothing. This is just tax which is paid indirectly by a person, as per the name suggests. So indirectly means what? Indirectly means this is not directly paid by a taxpayer. Means a taxpayer is not directly paying any taxes to the government. As you know that taxes is only paid to the governments, so it is not directly paid by the taxpayer. So what is actually indirect taxes? Indirect taxes means tax on goods and services. That means here we pay tax on goods and services. So here we know that generally tax is paid on the income, that is income tax that we studied in last module, that is direct taxes. But under indirect taxes, goods and services are taxed, and it is paid by the paid by us indirectly. How it is paid? That is, we are not paying any tax. We are paying tax indirectly while purchasing of goods. When we purchase any goods from a shop, or we purchase any services from a service provider, we pay tax indirectly. That is, tax is charged under in the goods and services in the form of bill, and that tax is paid by us. But here liability is on not on the taxpayer. मीन्स हम लोग टैक्स पे करते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, बट लाइबिलिटी इसका हमारे ऊपर नहीं है. लाइबिलिटी किसके ऊपर है? जो गुड्स या सर्विस सेल कर रहा है उसके ऊपर लाइबिलिटी है, बट हम लोग उसका लाइबिलिटी का बर्डन हमारे ऊपर नहीं लेते. हम लोग लेकिन जब इनडायरेक्टली हम लोग पे कर रहे हैं, मतलब हम जब गुड्स या सर्विस परचेज कर रहे हैं, हम उसके साथ उस गुड्स एंड परचेज का जो प्राइस है उसके अंदर में टैक्स इंक्लूड है, वो टैक्स को भी हम गुड्स एंड प्राइस पर सर्विस का प्राइस के साथ दे रहे हैं. सो इट इज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एंड अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन द कंज्यूमर. दैट मीन्स actually this tax is paid by the seller, but ultimately this tax, this that payment, that burden is passed on to the consumer. When we purchase the goods, we are paying tax also. So indirectly it is in promoting inflation also. That is, it increases the price of the goods. अभी हम अगर कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस टैक्स के साथ उसका उस टैक्स पे कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस भी बढ़ा दे रहे हैं. तो पर्टिकुलर गुड्स का जब प्राइस बढ़ जा रहा है तो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है. इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है? रेट जब मार्केट में बढ़ता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं. तो अभी रेट मार्केट में बढ़ रहा है, अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो प्राइस जिस पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस सपोज 10 रुपया, हम उसके ऊपर 1 रुपया ज्यादा दे रहे हैं, 11 रुपया दे रहे हैं, तो हम लोग उस पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस क्या है, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. तो इट इज इनडायरेक्टली क्रिएटिंग इन्फ्लेशन. बट इसके साथ साथ इसका एक बेनिफिट भी है इनडायरेक्ट टैक्स पे. क्या आप लोग सब सुने होंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स में सिगरेट्स सिगरेट्स के बारे में आप लोग सुना होगा. सिगरेट्स सिगरेट्स लिकर, इसके बारे में आप लोग सुना होगा. तो
सिगरेट्स एंड लिकर क्या है, इसके ऊपर हम सरकार ज्यादा टैक्स चार्ज करती है। क्यों टैक्स ज्यादा चार्ज करती है? क्योंकि ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। सोसाइटी के लिए जो हार्मफुल है उसका प्राइस को बढ़ाने के लिए मौका देता है हमको इनडायरेक्ट टैक्स। तो उसका प्राइस को जानबूझ के बढ़ा कर रखा जाता है। इससे क्या होता है ना, सोशल वेलफेयर क्रिएट होता है और सोसाइटी में उस सब उस टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने का रिस्ट्रिक्शन इनडायरेक्टली इम्पोज हो रहा है। So it is indirectly promoting social welfare also. Then larger tax base. Larger tax base. As majority of goods and services are covered under without any exemption limit compared to direct taxes. मतलब डायरेक्ट टैक्स में हम लोग क्या करते हैं ना, एक इनकम टैक्स में कवर होने के लिए एग्जेम्पशन लिमिट है हम लोग का। उस एग्जेम्पशन लिमिट से के अंदर में जिस जो जो लोग आ रहे हैं वो लोग इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हम हर गरीब आदमी भी पैसा दे रहा है, अमीर आदमी भी पैसा दे रहा है, बट उसको मालूम नहीं चल रहा है कि वो टैक्स पे कर रहा है, बट इनडायरेक्टली वो लोग भी पैसा दे रहा है। तो रिच एंड पुअर आर टैक्स एट इक्वल रेट एंड लार्जर टैक्स, मतलब टैक्स देने वाले आदमी बहुत ज्यादा है। और ये डायरेक्टली भी किसी को पता नहीं चलता, पिंच नहीं कर रहा है, डायरेक्टली किसी को पिंच नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता है ना हम टैक्स पे कर रहे हैं। हम लोग को पता चलता है कि हम तो सामान खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, आलू हम 20 रुपया किलो में खरीद रहा है या 25 रुपया किलो में खरीद रहा है। हमें थोड़ी पता है कि उसमें जीएसटी कितना का है, वो नहीं पता है हमको। हम फ्रिज खरीदने जा रहे हैं, फ्रिज का कितना पैसा है पूछते हैं, भाई फ्रिज 20,000 रुपया है, तो फ्रिज का दाम दे रहे हैं, बट उसके अंदर जीएसटी कितना है किसको पता थोड़ी है। तो ये किसी को पिंच नहीं करता है। बट ये अगर हम अदरवाइज देखेंगे डायरेक्ट टैक्स में हमको पिंच करता है। जो इनकम टैक्स दे रहे हैं हम लोग मार्च महीना में हमेशा वेट करता है, मार्च महीना में आए भाई, मार्च महीना में सैलरी आएगा कम आएगा क्योंकि टैक्स कट जाएगा ये। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं, तो ये पिंच नहीं करता है। तो ये है, ये मेनली जो हमारा फीचर्स है इनडायरेक्ट टैक्सेस का यही है। तो अभी डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या डिफरेंसेस है वो तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर दिया है, बट हम लोग का स्टडी मटेरियल में पॉइंट वाइज है जिसको हम लोग को याद रखना है एग्जाम पर्पज के लिए, तो इसलिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन दोनों में सबसे मेन चीज है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। डायरेक्ट टैक्स के केस में एक ही आदमी के ऊपर है, बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में दो आदमी के ऊपर। मतलब इन डायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस मतलब जिस जिसके लिए टैक्स देना पड़ रहा है वो, और इम्पैक्ट मतलब उसका इम्पैक्ट एक ही आदमी के ऊपर आता है। मतलब एक ही आदमी अगर इनकम कर रहा है तो इंसिडेंस हो गया, इम्पैक्ट भी जो आदमी इनकम कर रहा है वही उसी के ऊपर ही आया टैक्स देने का। तो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट किसके कैसे होगा, वो एक ही आदमी के ऊपर हुआ। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इंसिडेंस सेल है, इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट पर्सन। इंसिडेंस क्या है, जब अगर मेरा सेलर सेल कर रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ रहा है, बट अल्टीमेटली टैक्स कौन दे रहा है, हम लोग जब पेमेंट कर रहे हैं तब। तो इंसिडेंस क्या हुआ, सेल करने के टाइम में आप पेमेंट कर रहे हैं, बट टैक्स पेमेंट कौन कर रहा है, सेलर दे रहा है। वो थोड़ी सेम हुआ, अलग अलग हुआ। आप इंसिडेंस सेल के ऊपर है, बट इम्पैक्ट किसके ऊपर है, जो सेलर सेल कर रहा है। बट इंसिडेंस कौन, जब सेल हो रहा है मतलब बायर आ गया वहां पर, हम आ गए, कंज्यूमर आ गए, बट इम्पैक्ट अलग आ गया। तो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट पर्सन। Here in direct tax, assessee bears the tax himself, but in direct tax, assessee pays the tax, but tax is ultimately beared by whom? Consumer. That is the person who is purchasing the goods. So डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर है, इनकम के ऊपर चार्ज होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर चार्ज होता है। हायर इनकम अगर रहेगा तो हायर टैक्स देना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स के केस में। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है, सब आदमी समान है, सभी को सेम टैक्स देना है, उसमें इनकम का कोई मतलब नहीं है। रिच भी टैक्स देगा, पुअर भी टैक्स देगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स लेकिन सोशल वेलफेयर की उनको प्रमोट करता है, वो डायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। और इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर रहा है, बट डायरेक्ट टैक्स को इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट नहीं करता है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये आया कहाँ से।
What is the background behind these indirect taxes? From where we know that indirect tax is something which exists. What is indirect taxes and from where it has come टू आवर सोसाइटी, मतलब हमारे जीवन में ये कहाँ से आया? कौन सोचा कि इंडायरेक्ट टैक्स बोल के एक आएगा जो कि हम लोग को सब पैसा, सब चीज का दाम बढ़ा देगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, सबको सभी को उसको इनडायरेक्टली पेमेंट करना पड़ेगा। ये सोच कहाँ से आई? तो ये सोच हम लोग कोई भी टैक्स के बारे में या कुछ भी बारे में हम लोग खुद अपने से नहीं सोच सकता। हमारा देश का संविधान है वो सब सोचने के लिए। तो हमारा संविधान, दैट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 246, संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स है, उसमें आर्टिकल नंबर 246 जो कि रीड करता है शेड्यूल 7 के साथ, वो हमको बोला कि हमारे 3 गवर्नमेंट है, 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट को के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ फॉर्म करने के लिए, दैट इज आर्टिकल 246 reduce subject schedule 7 divides subject matter of law into 3 categories, 3 lists. First is union list, second is state list, and third is concurrent list. In union list, central government has the powers. That is, union list contains different laws and under which central government has all the power to make rules, regulations, acts, etc. But under list 2, that is state list, state government only has the power. And list 3 is concurrent list, where both central government and state government has the power to make laws. Okay, so we will read under this chapter union list and state list. Concurrent list is not regarding taxes. This is regarding different other laws, that is civil laws, etc. So we'll not bother about all those things as we are not studying any law. So we will cover union list and state list. So what is a union list? Union list means where the central government has the power to make laws. So in union list, if you see entry number 82, 83, 84, 86, 92A, 92, 92C, 97, all these entries tells that on in which regard union government has the power to make laws. That means यूनियन गवर्नमेंट के पास किन किन चीजों के लिए कानून बनाने के लिए पावर है। एंट्री 82 में वो इनकम टैक्स ऑन इनकम, मतलब इनकम के ऊपर में वो कानून बना सकता है, इनकम को ऊपर टैक्स करने के लिए, बट अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स यूनियन नहीं लेवी कर सकता, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, बट व्हेयरएज स्टेट लिस्ट में देखिए एंट्री नंबर 46 है जिसमें स्टेट के पास पावर दिया गया है कि वो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर सकता है, वो लॉ बना सकता है। वैसे एंट्री 83 में देखिए कस्टम्स ड्यूटी, मतलब कस्टम्स हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर में अगर कोई ड्यूटी लगाना है या टैक्स लगाना है, यूनियन गवर्नमेंट लगा सकता है। एंट्री 84 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है। एंट्री 86 में वेल्थ टैक्स के ऊपर लॉ कर सकता है। 92A में सेंट्रल सेल्स टैक्स के ऊपर कर सकता है। 92C में सर्विस टैक्स के ऊपर कर सकता है। देन 97 बोलने से वो डिस्क्रिशनरी पे हो गया, एनी अदर मैटर नॉट कवर्ड इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, मतलब जो स्टेट लिस्ट में नहीं है और कंकरेंट लिस्ट में नहीं है तो उसके ऊपर यूनियन को ही पावर दे दिया गया इनडायरेक्टली कि वही लॉ कर सकता है। वैसे ही स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 54 के हिसाब से भाट, मतलब इंट्रा स्टेट सेल के ऊपर में जो टैक्स का लॉ है, वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर अगर कोई सेल परचेज हो रहा है तो उसके ऊपर टैक्स डाल सकता है, टैक्स लॉ बना सकता है स्टेट। ठीक है, 46 मैंने ऑलरेडी बता दिया, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स स्टेट लॉ कर सकता है। एंट्री 60 बोलने से प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स क्या है? अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स सरकार को देना पड़ता है। सैलरी, हम लोग सैलरी का जो स्लिप आता है, आप उस सैलरी स्लिप में आप चेक करेंगे तो उसमें प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन होता है। ठीक है, वैसे एंट्री नंबर 51 है एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, ऑफिंग, नार्कोटिक ड्रग्स, इंडियन हेम्प अदर देन यूज फॉर मेडिसिन। इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर सकता है, बट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज डिफरेंट। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोलने से ये सब चीज नहीं है, एंट्री 51 उसके अंदर नहीं आएगा। इसको ये सब मतलब लिकर, ऑपियम, नार्कोटिक ड्रग्स ये सब छोड़कर बाकी जितना प्रोडक्ट है उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कौन देगा? यूनियन गवर्नमेंट देगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगा। ठीक है,
तो यूनियन गवर्नमेंट का पास पावर है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का, ये सब चीज को छोड़कर। So I think now we all are clear about union list and state list. If still any doubt is there, then please comment. I will explain again. Then what are the problems of indirect tax in pre-GST? अभी हम लोग को सबको पता चल गया कि आज का डेट में जीएसटी क्या है, वो कॉमन आदमी भी जानता है कि जीएसटी क्या है। सब जीएसटी बोलने से, आज का डेट में टैक्स बोलने से सब बोलते हैं जीएसटी। तो अभी जीएसटी अगर बोल दिया गया तो ये जीएसटी पहले क्या टैक्स, जीएसटी से पहले क्या टैक्स, जीएसटी से पहले हम लोग जो अभी यूनियन लिस्ट में पढ़े टैक्स या स्टेट लिस्ट में टैक्स पढ़े, वो सब था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, वैट था, ये सब था। बट अभी जीएसटी, जीएसटी के बाद सिर्फ जीएसटी, ये सब चीज नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे क्या प्रॉब्लम हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्स में आने लगा कि हमको सोचना पड़ा कि ऐसे नहीं जीएसटी लाना पड़े। क्या प्रॉब्लम आना है, क्योंकि जीएसटी का प्रोविजन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो पढ़ने से आपको क्लैरिटी आएगा कि जीएसटी में क्या क्या बेनिफिट आ रहा है। हाँ, तो जीएसटी, बट अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्री जीएसटी का जो था, हम लोग का जितना भी एक्साइज ड्यूटी था या सेल्स टैक्स था या वैट था, उसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था। पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स फ्रैगमेंटेड था, हाईली फ्रैगमेंटेड बोलने से हर स्टेट का अपना अपना लॉ था, हर स्टेट का अपना अपना वैट का लॉ था, अपने अपने रेट्स थे, अपने हिसाब से वो लोग प्रोसेस बना के रखे थे। हाँ, और डिफरेंट हर स्टेट का बॉर्डर के पास एक गेट रहता था, वहां पर बहुत सारे गाड़ी लॉरीज वगैरह, अगर कोई पास में किया होगा आप लोग देखा होगा, लॉरीज वगैरह लगे रहते थे, टैक्स कलेक्शन होता था, चेक्स चेकिंग होता था गाड़ी का, क्या बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता था। हम्म, हर स्टेट को अलग अलग मार्केट बोल के समझते थे। ठीक है, कोई कोई इंडस्ट्री एक स्टेट में ही, एक स्टेट में इंडस्ट्री भरा हुआ रहता था और एक स्टेट में कोई खाली था, बेस्ड ऑन द लॉ। अगर कोई स्टेट ज्यादा बेनिफिट दे रहा है तो इंडस्ट्री उसी स्टेट में चले जाते थे। कोई स्टेट दे नहीं पा रहा है, उसके पास फंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके पास कोई इंडस्ट्रीज नहीं आते, तो वहां का इकोनॉमी डाउन रहता था। और सबसे मेन प्रॉब्लम था कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस को मैं डिटेली पढ़ाऊंगा आगे। बस अभी बस ये इतना समझिए कि कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस मीन टैक्स ऑन टैक्स। दैट इज प्री जीएसटी एरा में हम टैक्स के ऊपर भी टैक्स देते थे। कैसे देते थे टैक्स के ऊपर टैक्स, मैं उसको पढ़ाऊंगा। बट जीएसटी में वो चीज, ये सब चीज लिमिटेशन हम लोग का जीएसटी में कवर हो गया। जीएसटी आने के बाद ये सब चीज, इतना ये सब चीज का प्रॉब्लम खत्म हो गया है। ठीक है, उसको हम जब जीएसटी का लॉ आगे पढ़ेंगे मैं समझाऊंगा। अभी मैं बस क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग का आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना था, आपको समझाना जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉब्लम्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन प्री जीएसटी रीजन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाई जीएसटी, व्हाई गवर्नमेंट थिंक्स दैट वी शुड गो फॉर जीएसटी, व्हाई in such type of big indirect tax reform is required. Now, if you see, I have taken the examples from your study material, cascading effect of taxes. Pre-GST era में taxes कैसा था and post-GST era में taxes कैसे आए। In pre-GST era आप देखो, ट्रांजेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ट्रांजेक्शन बिटवीन ए एंड बी क्या है, देखो ट्रांजेक्शन बिटवीन ए एंड बी में क्या है। ए क्या करता है, ए ले रहा है, ए सेल कर रहा है बी को। कौन सेल कर रहा है, ए बी को सेल कर रहा है। ठीक है, तो ए कितना, 1 लाख रुपया में सेल कर रहा है। ए कितना में सेल कर रहा है, 1 लाख रुपया में सेल कर रहा है। ठीक है, उस ए मैन्युफैक्चरर है, ए मैन्युफैक्चरर है तो उसके ऊपर उसको एक्साइज ड्यूटी पेमेंट करना पड़ता है। तो एक्साइज ड्यूटी उसने 12% दिया, तो कितना, 1,12,000 हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अभी 1,12,000 का सेलिंग प्राइस हुआ, तो अभी वो उसको एक स्टेट से दूसरा स्टेट को भेजना है मटेरियल, तो उसको सेल टैक्स देना पड़ा सेल के ऊपर। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर के ऊपर है, वो मैन्युफैक्चर किया बोल के टैक्स दिया, फिर बिक्री के टाइम पे, सेल के टाइम में अगेन उसको टैक्स देना पड़ा। तो 1,12,000 प्लस 2,240 कितना हो गया, इनवर्स वैल्यू मतलब बिल कितना का हुआ, 1,14,240। इसमें देखिए
हम लोग का 12,000 टैक्स, ये 2240 है टैक्स। टोटल टैक्स कितना हो गया? 14,240। ठीक है, अभी हुआ नेक्स्ट। क्या किया? बी ने उसको सी को सेल किया, तो बी क्या किया? 1,14,240 उसको कॉस्ट गिरा था, तो उसने क्या किया? उसमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया। 10,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड करने के बाद कितना हुआ? 1,24,240। अभी वो फिर सेल कर रहा है, तो उसको अगेन सेल टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसने अगेन सेल टैक्स दिया 12%। तो कितना गया? 1,24,240 का 12% आया 14,900 में। तो कितना का इनवर्स वैल्यू हो गया? 1,39,149। टैक्स कितना देना पड़ा? 29,149 रुपये। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? पोस्ट जीएसटी। पोस्ट जीएसटी, पोस्ट जीएसटी में क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन बिटवीन ए एंड बी के अंदर जब होता है, तो सेल प्राइस ऑफ गुड्स कितना है? 1,00,000। जीएसटी ऐड हो गया 12%, कितना हुआ? 1,12,000। 1,12,000 ही डायरेक्ट बिलिंग हुआ। यहाँ पर कोई देखिए एक्साइज ड्यूटी नहीं है कि सेल्स टैक्स नहीं, सीधा सेल के ऊपर, सीधा सेल हुआ, सेल के ऊपर सीधा जीएसटी गिरा। ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एक बार एक्साइज ड्यूटी डाला, सेल के टाइम पे अगेन टैक्स डाला, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सेल के टाइम पर एक ही टैक्स डाला, वो है 12,000 रुपये। तो टोटल कितना का इनवॉइस वैल्यू हो गया? 1,12,000 रुपये। तो अभी जब बी सी को सेल करेगा, तो उसके पास सेल प्राइस कितना है? वो 1,00,000 का सामान खरीदा था, उस पर वो 10,000 का प्रॉफिट ऐड किया, 1,10,000। जीएसटी 1,10,000 के ऊपर कितना आता है? 12%, 13,200। तो इनवर्स वैल्यू कितना हुआ? 1,13,200। अभी आप सोचेंगे कि भाई इसका तो कॉस्ट प्राइस 1,12,000 था, तो ये यहाँ पर 1,10,000 क्यों लिख रहा है? और उसको तो 1,12,000 लिखना चाहिए, फिर उसके ऊपर और 10,000 डाल के 1,12,000 प्लस 10 कितना हुआ? 1,32,000 लिखना चाहिए, फिर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है जीएसटी में। जीएसटी में आप देखिए नीचे में अमाउंट पेएबल टू द गवर्नमेंट कितना है? 13,200। जितना ओनली यहाँ पर टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता है, ऊपर में 12,000 जो टैक्स दिया गया था, उस 12,000 के ऊपर 12% नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप टैक्स दिया जाता है ओनली ओरिजिनल प्राइस के ऊपर। अगर परचेज में, परचेज क्वांटिटी, परचेज वैल्यू का अंदर टैक्स है, तो वो टैक्स को माइनस किया जाता है, और जो ओरिजिनल बेसिक प्राइस है, उस बेसिक प्राइस के ऊपर में ही जीएसटी कैलकुलेट होता है, और उसका क्रेडिट भी मिलता है। मतलब ये 13,200 से फिर ये 12,000 ऑलरेडी पेड हो चुका है, ऑलरेडी जीएसटी हम लोगों ने दे चुके हैं, तो वो माइनस होगा, तो 1,200 रुपये का सरकार को टैक्स जाएगा। तो कितना? 1,23,000। सेम गुड्स प्री जीएसटी एरा में कंज्यूमर को 1,39,000 का मिल रहा है, और सेम गुड्स कंज्यूमर को 1,23,000 का मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कंज्यूमर्स को भी फायदा हुआ है, और टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं आया। तो इसीलिए कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस बंद किया गया। पहले क्या ना, टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था, जिससे क्या ना, प्राइस ऑफ गुड्स भी बढ़ जाता था। प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ने के बाद इन्फ्लेशन भी प्रमोट होता था, और कंज्यूमर्स को भी बहुत, मतलब आम आदमी को बहुत नुकसान होता था। तो इसीलिए कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस को बंद किया गया। अभी आते हैं नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जीएसटी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जीएसटी, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।